Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, that is Introduction to Database Management System. It's called DBMS Part 1. In last session we learned the scripting language. Now in this session we are going to learn RDBMS. It means Introduction to Database Management System. In current scenario, with the advent and reach of digital technology, almost all data is stored and managed electronically. Students, right now I am preferring textbook, but the same thing is given in your Darpan also. So you can refer Darpan also, either Darpan or textbook. So day-to-day transaction in small and medium enterprises are recorded in system termed as information system. So user information system are growing multifold. User expect flexibility in accessing data irrespective of the places they are at, the irrespective of where the data is stored. Right, student? It means what? Nowadays daily we are doing the transaction, we are purchase a product, or we keep our information, right? But how we store this all information? For is there any base is there? So that we have to find out in this chapter. So organization now being global, information system are not now limited to storage and maintenance of enterprise transaction, which were understood as replacement of register files maintaining organization. So like suppose example, search engine, reservation system, online banking, online tax filing, stock trading are example of system used by millions of users simultaneously, right? स्टूडेंट, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि गूगल सर्च इंजन, तो गूगल सर्च इंजन में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो तुरंत उसका रिजल्ट आता है. इट मीन्स व्हाट, कि जो भी हम लोग का डेटा है वो गूगल के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर है, जहाँ से हम लोग एक्सेस करते हैं डेटा. रिजर्वेशन सिस्टम ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेन का टाइम टेबल दिया हुआ है, कौन सी ट्रेन कब कहाँ पे जाने वाली उसका टाइम डिटेल दिया हुआ है, कितने सीट रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है वो दिया जाता है. तो ये सारा हम लोग को किसके थ्रू मिलता है स्टूडेंट? तो हमारे डेटाबेस के थ्रू, राइट. आफ्टर दैट टुडे यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बिकमिंग इनवाइटेबल, राइट. All of us directly or indirectly act as user of one or other information system. स्टूडेंट, आज के जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो फिक्स नहीं है, उसके रिलेटेड हम लोग को बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज मिल रही है. यानी अगर हम लोग सिर्फ रिजर्वेशन के लिए जाएं तो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे है कि जहाँ से हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, राइट. सिर्फ अगर हमें मूवी का टिकट बुक करना है तो देयर आर मल्टीपल वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन बुक द टिकट. एज वेल एज इफ यू वांट टू परचेस अ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑनलाइन, इज देयर आर मैनी कमर्शियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन परचेस द प्रोडक्ट. So same way there are the information system is becoming inevitable. So doctors, engineers, shopping store owners, broking agent, educator and students, none of the entities have remained untouched. तो स्टूडेंट, आज के दिनों में ऐसा एक पर्सन भी नहीं होगा कि जो इंफॉर्मेशन या इंटरनेट से अवेलेबल नहीं है, राइट. हर एक पर्सन, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई शॉपिंग स्टोर का ओनर हो, या ब्रोकिंग एजेंट हो, या एजुकेटर हो, या स्टूडेंट हो, सारे के सारे लोग आजकल डेटाबेस यूज करते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. इंफॉर्मेशन सिस्टम टुडे हैज आल्सो बिकम अ स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग हैंड इन टेकिंग डिसीजन, राइट. आज इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग बहुत बड़ा हेल्प ले सकते हैं. टू टेक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन एवरीवन नीड्स करेक्ट, प्रिसाइज एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम, राइट. अगर हम लोग को कुछ बेस्ट डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो इट इज ऑब्वियस दैट द परफेक्ट डिसीजन डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. परफेक्ट डिसीजन किस पे डिपेंड है? तो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन के उस पर डिपेंड है. It is obvious that the perfect decision it's completed. Information is output generated through processing of raw data. Information कहाँ से मिलती है स्टूडेंट? तो जो भी raw data का processing होता है उसके थ्रू हमें information मिलती है. So let us first understand the two important terms, that is data and information. तो अभी
चैप्टर का नाम ही है स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी डेटाबेस मैनेज करने के लिए जो डेटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा एंड इंफॉर्मेशन में मैनी टाइम्स अ वर्ड data and information are used interchangeably, so it is necessary to have a clear idea of both the words. Let us first understand data and information by their possible definition. अभी कितने लोगों को लग रहा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन यानी सेम है, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन बोथ आर डिफरेंट? तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, राइट? तो ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड डिटेल्स related to people, place, things or event is known as data. Student, data की definition समझ लेना कि all kind of facts, right, figures and details, कोई भी चीज का, कोई भी पर्सन के नाम हो, चाहे कोई भी चीज का नाम हो, कोई भी इवेंट का नाम हो, कोई भी चीज है, तो ये आपका क्या है? डेटा है। तो डेटा में बी इन एनी फॉर्म, डेटा का कोई फॉर्म नहीं होता है, राइट? वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। सो इट मे बी रिटन इन ओरल, कंप्यूटराइज, नॉन कंप्यूटराइज। हम लोग बोल रहे हैं, अभी फिलहाल मैं बोल रहा आपको, तो ये भी एक टाइप का डेटा है, राइट? सो डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म मे नॉट बी मच यूज. Data must be processed in a proper way to generate the useful and meaningful information, right? अगर डेटा उसके ओरिजिनल फॉर्म में हुआ तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बट वही डेटा को हम लोग ने प्रॉपरली यूज़ किया, जनरेट किया, तो उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है, राइट? लुकिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनी बिजनेस हाउसेस कंसिडर इज इट एज इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ द बिजनेस, राइट? डेटा ये हमारे कोई भी बिजनेस करना है तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एसेट है. विदाउट डेटा वी कैन नॉट डू एनी बिजनेस. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Information on the other hand can be described as the required result obtained from processing of the data. This means that the information is nothing but the processed data. Information क्या है? तो information is nothing but the जो data process होता है उसको हम लोग बोलते हैं information. यानी information is important because it forms the foundation for decision making. जब भी हम लोग को कोई डिसीजन लेना होगा तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट? तो इन्फॉर्मेशन. आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिसके थ्रू आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो या परफेक्ट डिसीजन ले रहे हो. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो टेकिंग टाइमली डिसीजन based on correct and relevant information may be beneficial for us. On the other side, taking decision based on incomplete or incorrect information may badly affect the business. अगर हम लोग देखने जाएं, अगर हम लोगों ने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी तो उसका बिजनेस पे बैडली इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में जाने के चांसेस हैं, राइट? तो जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके वो परफेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए. सेम वे अगर यही चीज़ अगर आपके एग्जाम के वक्त हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सो यू विल राइट परफेक्ट पेपर एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स इन एग्जाम. But if you are not have the perfect information about that subject and you're not able to write in exam. Okay, so let us clear the concept of data and information with an example. अब डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज you and your team in a school decide to send birthday wish to each student of the school. हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमें क्या करना है? बर्थडे विश करना है. तो दिस आइडिया रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ बर्थ डेट्स लाइक 10 सितंबर 1998. सपोज अभी एक डेट है कि जिनका बर्थ 10 सितंबर 1998 को हुआ है, द डेट्स कलेक्टेड एक्ट एज अ डेटा इन दिस केस. तो ये जो डेट का हम लोग कलेक्शन करें सारे स्टूडेंट्स के बर्थ डेट का, तो ये हमारा क्या हुआ? डेटा हो गया, राइट? डेट का कलेक्शन ये हमारा डेटा हो गया. If today is 10 September, you will find out names of the boys and girls whose birthday falls on this date. So the set of names in your list now act as a information. यानी स्टूडेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया आपको? देखो सबसे पहले अगर अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग डेट कलेक्ट कर रही है, डेट जितनी भी कलेक्ट हो रही है वो सारा हमारा डेटा है. बट वो डेटा को प्रोसेस करके जो स्टूडेंट्स के नाम आएंगे पर्टिकुलर बर्थ डेट के, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी. समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस स्टूडेंट? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस एंड डेटा मॉडल.
Having learned about data and information, let us now have a look at database. We all use one or more type of database in our day-to-day life, right? डेली हम लोग डेटाबेस का यूज करते हैं, बट कैसे करते हैं, क्या कहाँ हो रहा है, ये हमें अभी डिटेल में जानना है. We keep a diary containing address and phone numbers of our relatives and friends at home. Students, अभी नहीं, but previously our parents are keeping the diary in their pocket for the address or the friend's phone number, right? Or relatives phone number they are storing in their diary. So same way, your school maintenance details of all the students enrolled in the school and attendance record of every student has to be maintained by a school, right? स्कूल टीचर क्या करता है, तो हर दिन जो भी स्टूडेंट स्कूल में आता है उसका अटेंडेंस लेना है, उसके एग्जाम के मार्क्स, इसका सारा भी रिकॉर्ड रखता है, यानी डेटा मेंटेन रखते हैं, राइट. इंडियन गवर्नमेंट इज इशूइंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू ईच सिटीजन अंडर आधार प्रोजेक्ट, राइट स्टूडेंट. आपके हर एक के पास आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड पे हर एक पर्सन का यूनिक आधार नंबर है, यूआईडी, राइट. तो वो यूनिक होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट इसका हर एक का आधार का रिकॉर्ड रखती है उनके पास, तो वो एक टाइप का डेटाबेस हो गया. तो thus a detail of each person has to be maintained. Passport office maintain detail of the issued passport. Doctors maintain medical history of each patient. Railway department maintain details of passenger. All these are example of records. यानी एक टाइप का ये क्या है स्टूडेंट, रिकॉर्ड है, या हम लोग बोल सकते हैं इसको डेटा है. तो एज पर द कॉमन डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, अभी डेटाबेस की कॉमन डेफिनेशन क्या होगी, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, राइट. जो भी कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग डेटा का, इसको ऑर्गेनाइज मैनर में, यानी एक के बाद एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग इसको स्टोर करते जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस. सो एज डिस्कस अर्लियर, डेटा इज स्टोर बिकॉज डेटा इज टू बी यूज. So thus the word related and organizing is very important in definition of database. So you may compare storing data to arranging things in your room. You might be receiving instruction from your parents and teachers to keep your belongings at proper and pre-decided place, right student. Suppose यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग के अंदर आप जो बुक्स रखते हो, कंपास रखते हो, टिफिन रखते हो, तो हर एक की प्लेस एक डिसाइड है. ऐसा नहीं कि जहाँ पे टिफिन बॉक्स रखते हो वहाँ पे आप जर्नल रख दोगे, या जहाँ पे बुक्स रखते हो वहाँ पे टिफिन रख दोगे. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. सबकी प्री डिसाइड प्लेस होती है. उसी तरह अगर आप घर में जाओगे तो आपके कपड़े कहाँ पे रखना है उसकी एक प्री डिसाइड प्लेस है, आपके खिलौने कहाँ रखना है उसकी एक प्री डिसाइड प्लेस है, आपके पर्सनल चीजें जो भी है वो कहाँ पे रखने, बुक्स कहाँ पे रखने, उसके लिए एक प्री डिसाइड प्लेस है, राइट. हम लोग कहीं भी कोई भी चीज नहीं रखते. उसी तरीके से यू मे फिक्स अ प्लेस ऑफ स्कूल बैग, स्टेशनरी बुक. यू मे लेबल द कंपार्टमेंट इन द बुक शेल्फ, फॉर एग्जाम्पल साइंस, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा. इफ योर फादर गिव्स यू अ बुक ऑन ह्यूमन बॉडी, you may decide to keep it in science section. Next time when you want to read the book, it will be very easy for you find out the same book, right student. अगर हम लोग ने हर एक चीज़ की एक प्री डिसाइड प्लेस होगी, तो अगर हम लोग को वो प्रोडक्ट फिर से हम लोग को चाहिए तो हम लोग को वो इजीली मिलेगा. तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑलवेज मेक सर्चिंग इजियर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो लॉजिकल अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलर टू योर बुक, clothes in wardrobe are also require logical arrangement. However, you might have noticed that structure of wardrobe and bookshelf is normally different, right student. जहाँ पे हम लोग कपड़े रखते हैं wardrobe में, उसका स्ट्रक्चर और जहाँ पे बुक रखते हैं वो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो the place designated to store jewelry or kitchen utensils has different structure, right. जहाँ पे हम लोग ज्वेलरी शॉप में गए, ज्वेलरी शॉप का जो स्ट्रक्चर है या हम लोग बोलते हैं किचन का स्ट्रक्चर, वो दोनों डिफरेंट है. तो अबव एग्जांपल इंडिकेट दैट डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स टू बी स्टोर, स्ट्रक्चर ऑफ शेल्फ इज टू बी डिजाइन. जो प्रोडक्ट हम लोग को रखने, जो चीजें हम लोग को रखनी, उसके हिसाब से हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है. सिमिलरली डेटाबेस आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल. उसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा क्या चीज़ का है, उसके लिए कितने टेबल लगेंगे, उस टेबल में कितने कॉलम लगेंगे, उस हिसाब से हम लोग ये डिज़ाइन करना पड़ता है. तो द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज नोन एज अ डेटा मॉडल. डेटा मॉडल डिस्क्राइब वे ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा. देयर आर डिफरेंट डेटा मॉडल्स like hierarchical data model.
नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। स्टूडेंट ये तीनों नाम याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। डेटा मॉडल कितने टाइप के हैं? तो 3 टाइप के हैं, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। इन दिस टेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग रिलेशनल मॉडल, डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल इन द मार्केट। हम लोग को इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है? तो रिलेशनल मॉडल पढ़ना है, राइट, विच आर बेस्ड ऑन वन ऑफ द अबव मेंशन डेटा मॉडल्स। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो टू वर्क विथ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस वन मस्ट फर्स्ट डिफाइन एंड क्रिएट अ डेटाबेस। जब भी हम लोग को कंप्यूटर में डेटाबेस के साथ वर्क करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टूडेंट आपका डेटाबेस का नाम क्रिएट करें, डेटाबेस क्रिएट करें। हाउएवर जस्ट क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट द ओनली वन टास्क। सिर्फ डेटाबेस बनाना ये एक टास्क नहीं है हमारा। तो इसके अलावा इन ऑर्डर टू कीप द डेटाबेस रेडी विथ लेटेस्ट अप टू डेट डेटा, राइट स्टूडेंट, डेली जो जो उसमें चेंजेस होते रहेंगे वो सारे उसमें अप टू डेट होने चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, जो भी वीडियो हम लोग डेली आपको भेज रहे हैं वो आपने डेली के डेली कंप्लीट करने चाहिए। ये आपका टास्क है आपके साइड से। अगर आप डेली नहीं कंप्लीट करते तो दूसरे दिन आपके पास ये बर्डन बढ़ जाएगा कि आपके वीडियो ज़्यादा देखने हैं और वो कंप्लीट करने हैं प्रॉपरली, राइट। सो फॉलोइंग बेसिक टास्क आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म रेगुलरली विथ एज मच ईज एज पॉसिबल। So adding data into a database as and when transaction take place. Students, these all are the basic tasks when we doing the database activity. तो सबसे पहले डेटा के अंदर डेटा ऐड करना है डेटाबेस के अंदर, राइट। सेकेंड, एडिटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस विद द करेक्शन रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन नोटिस। जब भी हमें लगा कि डेटाबेस में कोई नाम चेंजेस करने हैं, कोई कॉलम ऐड करने हैं, तो हम उसको एडिट करते हैं। रिमूविंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, अगर हम लोग को कोई अननेसेसरी चीज़ें लगी तो हम लोग उसमें से वो रिमूव करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन अ प्रॉपर मैनर, डेटाबेस को प्रॉपरली हम लोग अरेंज करते हैं। रिट्राइवल ऑफ डेटा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहते हूँ, लाइक एग्जाम्पल सपोज इफ यू वांट टू पे स्कूल फीस, एट दैट टाइम यू आर कमिंग इन द स्कूल, यू आर टेलिंग योर GR नंबर और योर नेम। As per your name or GR number, you will get exact fees, how much amount is pending. So that is the retrieval of data as per the user requirement. Securing data store in database, maintain backup of database, allowing multiple user to access database simultaneously. एक टाइम पे मल्टीपल यूजर भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, आपका 10th का रिजल्ट लगा तो 10th का रिजल्ट क्या, आप हर एक स्टूडेंट वेबसाइट पे आपका रिजल्ट देख सकता था खुद का, राइट। तो ये मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस साइमल्टेनियसली। सो अलाउइंग डेटा टू बी स्टोर मल्टीपल लैंग्वेज, जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ये मल्टीपल लैंग्वेज में स्टोर होता है। अलाउइंग डेटा टू स्टोर इन मल्टीपल प्लेसेस, और ये मल्टीपल प्लेस पे भी स्टोर होता है। तो ऑल टास्क रिलेटेड टू डेटाबेस हैंडलिंग इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट। और ये जितने भी टास्क हैं इसको इस सारे टास्क को हैंडल करने की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। So naturally we need special software to do this kind of work. ये सब करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। Such a software are known as database management system, और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो समझ में आया स्टूडेंट DBMS क्या है? DBMS can be defined as system designed for efficient storage, maintenance and retrieval of data. In short, the DBMS software is what makes database practical and more usable. In today's world, database itself is useless if there is no DBMS associated with it for accessing its data. Oracle, Ingress, DB2, SQL Server, MySQL, MS Access Base, these all are the students database storing software, right? By using this software we can do the DBMS activity or database management systems activity. So these are the names of the some popular DBMS software available in the market. In this book we will discuss about the base database called as OpenOffice Base. जो हम लोग को यूज करना है वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर का नाम है OpenOffice Base. So from now onwards we call it as a base, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेस सॉफ्टवेयर, BASE बेस सॉफ्टवेयर।
As we are aware of terms data information database and database management system, let us proceed further and get acquainted with base and open source database available as a part of open office suite. स्टूडेंट ये जो बेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स वाई इट्स ओपन सोर्स बिकॉज इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इंटरनेट. वी नॉट नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट. सो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो बेस इज बेस ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल. और ये किस पे बेस करता है तो रिलेशनल डेटा मॉडल पे डिपेंड है. राइट. So student, here today we will stop. From the next session we will start introduction to this. So till here, if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.